Welcome student, standard 9, standard 7, English medium. This is unit number 6, exploring patriotism, right? Patriotism. And we are today studying activity 1 to 4, right? Unit number 6, exploring patriotism. This is the activity number 1. Now look here, there is a shape of trees and there are some sketches there. We have to identify and count how many shapes are there. First of all, let us look it. Look here. Here is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. There are 10 shapes. 10 figure of human beings, face. What is this? It's a face of Indian leader. So let's see what you are seeing in this. I have seen such a face: Rajiv Gandhi, Indira Gandhi, Sarvapalli Radhakrishnan, Shahid Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Khan Abdul Ghaffar Khan, Mahatma Gandhi ji, Lokmanya Tilak, Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri. Again one time you look it. This is 1, 2, this is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Total there are 10 faces. Here are some questions. Let's see. Number 1. How many faces do you find in this picture? तो आंसर उसका आएगा I see 10 faces of Indian leaders. Question number 2. Can you identify them? तो आंसर आएगा yes. They are 1. Rajiv Gandhi, 2nd Jawaharlal Nehru, 3rd Bal Gangadhar Tilak, 4 Gandhi ji, 5th Abdul Ghaffar Khan, 6 Subhash Chandra Bose, 7 Bhagat Singh, 8 Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, 9 Indira Gandhi and 10 Lal Bahadur Shastri. राइट कितने इसमें 10 फेस दिखाई दे रहे? किसके किसके? राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, डॉक्टर राधाकृष्णन, इंदिरा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री. Let's read. Activity number 2, the making of the Mahatma. Gandhi ji
become associated with the social life of Indians in South Africa since his arrival there in 1893. Anyone can act against one's own nature or escape being a plaything in the hands of fate. Gandhiji had gone to South Africa with professional motives. गांधी जी वहाँ अपने धंधाकीय कामकाज के लिए वहाँ गए थे. बट ही मस्ट हैव बीन द डिज़ाइन ऑफ डेस्टिनी. लेकिन वो उनकी करनी कुछ अलग थी. उनका जो मोटिव था वो अलग था और उनको मिला भाग्य वो अलग था. उनका भाग्य डेस्टिनी यानी भाग्य, ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी आपके नसीब में जो होने वाला है, जो जिसको चेंज नहीं कर सकते, वैसी बात. His 21 years stay in South Africa become a preparatory period that equipped him with the perseverance and moral strength to emancipate society from the force of untruth and violence with the spiritual antidote of truth and non-violence. He was a life of pure dedication. वो अपनी पूरी जिंदगी के लिए समर्पित रहे सत्य और अहिंसा के बारे में. For not once in 20 years did he ever project himself as a one who was after fame or one asserting himself as the author of events. गांधी जी अपनी ज़िंदगी में इतने 21 साल में जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट किया, जो काम किया, उसमें वो कभी अभी फेम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेम? फेम यानी नॉट इवन आफ्टर फेम और वंस. तो एक भी इवेंट्स उनका ऐसा नहीं था जो इसके बारे में वो चुके. ट्रूथ और नॉन वायलेंस. ट्रूथ यानी सत्य के आधारित, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा. Unwelcome visitor, an expert from this paragraph is taken by the Gandhiji's autobiography My Experiment with Truth. यानी गांधी जी ने अपने जीवन के बारे में लिखा था अपनी आत्मकथा. उस बुक का नाम था सत्यना मेरे सत्य के प्रयोग, मारा सत्यना प्रयोगो. इस बुक में से ये लिया गया है. द पोर्ट ऑफ नाताल इज कॉल्ड डरबन. वो समय जो नाताल का पोर्ट था उसे डरबन कहते थे. एंड ऑल्सो एज द पोर्ट नाताल अब्दुल्ला सेठ हैड कम टू रिसीव मी. और खुद वहाँ अब्दुल्ला सेठ वहाँ आए थे. As the ship reached the quay and the people of Natal came on board to meet their friends. जैसे ही जहाज बंदर के प्लेटफॉर्म पे आता है, नाताल के लोग उनके मित्रों को मिलने के लिए आए हैं. I realized that the Indian were not quite respected there. तो गांधी जी को क्या पता चला? What he realized यानी उन्होंने क्या अनुभव किया कि वहाँ के जो लोग हैं वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे. I noticed a kind of rudeness. उन्होंने क्या चीज़ उसके अंदर नोट की? रूडनेस यानी सख्तपना, जो ऐसा बेफाम रहता है ना, जिसमें रिस्पेक्ट नहीं होता है, बराबर ना. ऐसे जो लोग होते जो ज़्यादा करके ऐसे तुच्छ होते, तुंड मिजाजी होते, उसको रूडनेस कहते हैं.
इंडियंस वेयर नॉट क्वाइट रिस्पेक्ट देयर, उनको वहाँ के जो इंडियन लोग हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। और उन्होंने क्या दूसरी बात दिमाग में उनकी आई कि उनमें कुछ एक प्रकार का सख्तपन था, यानी स्वभाव उनका रूढ़ था, सख्त स्वभाव था। इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल हु न्यू अब्दुल्ला सेठ, वहाँ के जो लोग जो अब्दुल्ला सेठ को जानते थे उसमें एक प्रकार का विरोधाभास ये था कि भाई वो सख्त मिजाजी थे, तुंड थे, घमंडी थे। इट हर्ट मी, उससे मुझे आघात लगा। ही टुक मी होम एंड गेव मी अ रूम नेक्स्ट ऑफ दिस, मुझे वहाँ लेके गए और मेरे को एक रूम दिया। अब्दुल्ला सेट्स लिटरेसी लेवल वॉज लो, वो जो अब्दुल्ला सेठ जिसने बुलाया था ना उनको लंदन से, वो अब्दुल्ला सेठ का एजुकेशन ज़्यादा नहीं था, वो थोड़ा कम था। बट हिज नॉलेज थ्रू आउट एक्सपीरियंस वॉज इमेंस, यानी उनका जो चाहे उनका अंदर ये शिक्षण कम था लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस था ना, जो अनुभव उन्होंने पढ़ा था ना, वो असीमित था, बहुत था। He had a sharp intellect, उसके अंदर जो बुद्धि क्षमता थी वो बहुत ही शार्प थी, तेज थी। एंड वॉज कॉन्शियस ऑफ इट, और वे उसके प्रति जागरूक भी थे। ही हैड लर्न सफिशिएंट इंग्लिश फॉर कन्वर्सेशन थ्रू द प्रैक्टिस, और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के जितना इंग्लिश तो उन्होंने सीख ही लिया था। He managed all his work with what kind of English? He was proud of Islam. He was fond of discussing philosophy. On the second or third day, he took me to see the court of Durban. He made me sit next to his lawyer in the court. उन्होंने लॉयर के बाजू में उनको बैठने की जगह दी, वो उनको अपनी कोर्ट दिखाने ले गए। द मैजिस्ट्रेट कीप लुकिंग एट मी, मैजिस्ट्रेट ने उनको बार बार वो ध्यान से उनको गांधी जी को देख रहा था। ही आस्क्ड मी टू टेक ऑफ माई टर्बन, उन्होंने अपनी पगड़ी निकालने को कहा, और गांधी जी ने क्या किया? मना किया। ही रिफ्यूज टू टेक इट ऑफ एंड लेफ्ट द कोर्ट, उसने उसको निकालने को मना किया और वे कोर्ट के बाहर चले गए। As my luck would have it, there was a battle here as well. Abdullah said did not like that suggestion. He said, if you make that change now, it will be misunderstood. अगर आप ये चेंजेस अभी करेंगे तो लोगों के अंदर भावना क्षुब्ध होगी, मिसअंडरस्टैंड होगा, उनके अंदर समझदारी की जगह पे गैर समझदारी होगी। Those who want to wear the turban of their country will have a hard time. जो अपने एरिया का पगड़ी पहनना चाहते उसके लिए ये समय कठिन है। Moreover, you look elegant with a turban of our country. और दूसरा कि आप आपके एरिया की जो पगड़ी पहनेंगे तो आप थोड़ा स्टाइलिश अच्छे भी लगोगे। You will look like a waiter if you wear an English cap. अगर आप डिफरेंट दिखना चाहते हो तो अगर आप इंग्लिश हेड पहनोगे तो वहाँ वेटर जैसे लगोगे। Those words had worldly wisdom.
ऑल्सो पेट्रियाटिज्म, इसके ये जो वर्ड्स थे वो उसकी वजह से उनको स्वतंत्रता और देशभक्ति, एंड टू एन एक्सटेंड लिटिल कॉन्वर्सेशन टू, उसकी वजह से देशभक्ति का भावना हुई, स्वतंत्रता का मन में विचार आया, और एक्सटेंड टू ए लिटिल कॉन्वर्सेशन टू, और थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत भी हुई। आई रोट ए लेटर टू द न्यूज़ पेपर अबाउट द इंसिडेंट एंड डिफेंस ऑफ मी एंड द टर्बन। उन्होंने न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल लिखा कि भाई ये मेरी और मेरी पगड़ी के बारे में उन्होंने लिखा। और माई टर्बन वर एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड इन द न्यूज़पेपर, और उनके टर्बन के यानी पगड़ी के बारे में न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चा हुई। आई हिट द हेडलाइंस, उनको हेडलाइंस क्या दिया, अनवेलकम विजिटर, कि भाई अवांछनीय विजिटर है। एंड विदिन 3-4 days विदाउट एन एफर्ट आई गॉट पब्लिसिटी इन साउथ अफ्रीका, और 2-4 दिन में तो उनको गांधी जी को पब्लिसिटी यानी ख्याति मिल गई साउथ अफ्रीका में। सम टुक माई साइड, सम सीरियसली क्रिटिसाइज मी, किसी ने मेरी बात मेरे पक्ष लिया और किसी ने मेरी बात का मजाक भी उड़ाया, उसकी निंदा भी की। फॉर माई रूडनेस, और मेरी सख्ताई जो थी उसके बारे में उसने क्रिटिसाइज भी की है, निंदा भी किया। माई टर्बन सर्वाइव्ड ऑलमोस्ट टिल द एंड, और मेरी पगड़ी हर वक्त एंड तक रही। Here is activity number 3, मैच A with B। मैंने पेंसिल को उसको ज्वाइन भी कर दिया है, और कौन सा नंबर आता है ये भी साइड में मैंने लिखा है, बराबर। तो देखो, क्वेरी का मतलब क्वे का मतलब क्या होता है, पोजेसिंग टू स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, अथवा द लीडिंग प्ले क्वे का मतलब होता है लैंडिंग प्लेस बिल्ट अलोंग द कोस्ट साइड, दरिया किनारे या नदी किनारे पे जहाज़ को जो खड़ा रखने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया होता है उसे कहते हैं क्वे। लिटरेसी का मतलब है possessing to skill of reading and writing। थर्ड, philosophy, उसका मतलब है द प्रिंसिपल अंडरलाइंग ऑल नॉलेज, उसको फिलोसॉफी कहते हैं। मैजिस्ट्रेट का मतलब इसके अंदर होता है ए लॉ रैंकिंग जुडिशियल ऑफिसर। फिर कॉन्फ्लिक्ट, उसका मतलब है इंटरनल स्ट्रगल, इनर स्ट्रगल। एलिगेंट का मतलब है ग्रेसफुल इन अपीयरेंस, यानी स्टाइल थोड़ा अच्छा दिखने वाला, उसको एलिगेंट कहते हैं। पेट्रोइटिज्म का मतलब है द लव फॉर वंस अवर कंट्री, द वन लव फॉर अवर कंट्री। Conversation means the tendency to preserve old custom। Emancipate, उसका मतलब होता है set free, especially from legal, social और political restrictions। तो ये आपको इसमें जो कुछ ही पेंसिल से लिखा है वो आपको होमवर्क है आपका, वो 5 टाइम लिखना है, ओके। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4। नाउ एक्टिविटी नंबर 4 हैज सम क्वेश्चंस।
and we have to answer it, right? Already I have given answer here. Why did Gandhiji feel that Indians were not respected in Durban? Gandhiji noticed one kind of rudeness in the behavior of the people who knew Abdullah Seth. He also realized that the Indians were not quite respected. Those words had worldly wisdom, also patriotism, and to an extent a little conversation too. First, who is the person being referred as a wise and patriot and a conversative? So Abdullah Seth is the person being referred to as a wise and patriot and conservative. Which quality do you think this person possesses? यानी उनमें किस प्रकार की एबिलिटी थी, किस प्रकार के गुण थे, उनका स्वभाव ये था, वो किस प्रकार के स्वभाव के मालिक थे? गिव रीजन फॉर योर आंसर. Abdullah Seth was a wise person because he thought soon about the Gandhiji's repercussions if he gave up wearing the turban is the identity of the Indian people. Now question number 3. Justify the title unwelcome visitor. Do you think Gandhiji was really unwelcome visitor in South Africa? Why or why not? Gandhiji was an Indian, so native people were not happy to receive him in South Africa. Also, they were rude to Indians. Even magistrate objected against the turban of Gandhiji. Thus, he unwelcome visitor for them. Number 4. Take the correct option. किसके लिए? तो गांधी जी left the court because he refused to take off his turban as it would be a sign of tolerating disrespect for his custom. तो ये तो गलत बात थी उसने, क्योंकि ये बात ही गलत है कि इस तरह से उनकी पगड़ी निकाल देने को कहा जो अनलीगल था. तो ये आएगा इसके अंदर. If you were in Gandhiji's place, what would you have done on being asked to remove your turban? Why? Naturally, I wouldn't taken off my turban because it was not allowed. It was not allowed, and magistrate order was illegal power used against the people. So here is the end of this activity 4. We will see in another activity 5, 6, 7, 8, 9, whatever that. Okay. ये सब क्वेश्चन आंसर वगैरह होमवर्क के नोट में 5 टाइम लिखना, अच्छी तरह से याद रखना, मैच वगैरह सब. ओके. स्टिल बाय, सी यू.